We want to turn today to a verse of scripture that tells us how we can be delivered from the power of mammon and serve God with all of our heart. इस अध्ययन में हम पवित्र शास्त्र के एक वचन को देखेंगे जो हमें बताता है कि हम कैसे धन की शक्ति से मुक्त हो सकते हैं और पूरे दिल से परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। Money is a wonderful servant, but a terrible master. पैसा एक अद्भुत सेवक है लेकिन एक भयानक मालिक है। Like fire, a wonderful servant when kept in control on the gas stove, a terrible master when it's allowed to burn down the house. जैसे आग को गैस स्टोव पर नियंत्रण में रखा जाता है तो वह एक अद्भुत सेवक होती है, लेकिन जब उसे घर को जलाने की अनुमति दी जाती है तो वह एक भयानक स्वामी बन जाती है। Jesus said in Matthew 22 and verse 21, "Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's." प्रभु यीशु ने मत्ती 22:21 में कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। Teaching us, first of all, to be righteous in money matters. हमें ये सिखाते हुए कि हमें सबसे पहले पैसे के मामले में धर्मी होना है, And second, to be faithful in money matters. और दूसरा पैसों के मामले में विश्वास योग्य होना है। To be righteous is first of all to give back to other people what is rightfully theirs. धर्मी होने का अर्थ है सबसे पहले दूसरे लोगों को वह वापस लौटाना जो उचित तरह से उनका है। If you have borrowed money, return it. यदि आपने पैसा उधार लिया है तो उसे वापस कर दें। If you have cheated, return it. यदि आपने धोखा दिया है तो उसे वापस कर दीजिए। If you have cheated the income tax department or the customs department, give it back. यदि आपने आयकर विभाग या सीमा शुल्क विभाग को धोखा दिया है तो इसे वापस कर दे। If you don't do it, you'll be dragging a chain on your feet all your life. यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जीवन भर अपने पैरों को जंजीर में जकड़े हुए खींचते रहेंगे। You'll never be able to run the Christian race, I'll tell you that. आप कभी भी मसीह दौड़ में भाग नहीं ले पाओगे, यह मैं आपको बता दूं। Settle it now. It's better to get God's blessings than to hang on to money which is not yours. अब इसका निपटारा करो, उन पैसों को पकड़े रहना जो आपका नहीं है, इससे बेहतर है कि परमेश्वर की आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। Do you know that if you have even 1 rupee which is unrighteously earned with you, क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास अधर्म से कमाया गया 1 भी रुपया है तो that money will be a curse to you and to your children. वो पैसा आपके और आपके बच्चे के लिए अभिशाप बन जाएगा। You will not be ready for the coming of the Lord if you have not settled matters down on this earth. यदि आपने इस धरती पर मामलों का निपटारा नहीं किया है तो आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं होंगे। No, we must not have 1 rupee with us which has been unrighteously earned. नहीं, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए जो अधर्म से कमाया गया And हो। concerning this matter which the Bible says in Romans 13 verse 8, owe nothing to anyone. इस विषय में बाइबल रोमन 13:8 में कहता है, किसी का कुछ भी ऋण न रखो। We should avoid all borrowing as far as possible. जहाँ तक संभव हो हमें उधार लेने से बचना चाहिए। Avoid getting into debt. It's a bad habit. कर्ज में गिरने से बचें, यह एक बुरी आदत है। Be happy with what God gives you and live within that income. परमेश्वर ने आपको जो दिया है उसमें खुश रहे और उसी आय में जीवन व्यतीत करें। The advertisements in the papers say, buy now and pay later. अखबारों में विज्ञापन कहता है अभी खरीदे और बाद में भुगतान करें। That's the surest way to get into debt. कर्ज में गिरने का यह सबसे अचूक उपाय है। Let me give you another motto. मैं आपको एक और आदर्श वाक्य देता हूँ, Save now and buy later when you have enough money with you. अभी बचाएं और बाद में खरीदे जब आपके पास पर्याप्त पैसा हो। Now, I want to make something clear here. अब मैं यहाँ कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। Many people get loans from their offices for buying a vehicle, a two-wheeler, or a building loan to build a house. कई लोगों को वाहन, 2 पहिया या कार खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए गृह ऋण के रूप में अपने कार्यालय या बैंकों से ऋण मिलता है। Now, there's nothing wrong in taking a loan like that because ऐसे ऋण लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि for that money you have something to show, like a vehicle,
or a house, उस पैसे के बदले आपके पास दिखाने के लिए कुछ न कुछ होता है, जैसे गाड़ी या घर। and if you're unable to repay that money, they will take back the house and take back the vehicle. So in that sense, you're not in debt at all. So that is all right. यदि आप उस पैसे को चुकाने में असमर्थ हैं, तो वे घर वापस ले लेंगे या वाहन वापस ले लेंगे। इस अर्थ में आप बिल्कुल भी कर्ज में नहीं है, तो यह ठीक है। But when you take money to spend on something that disappears, for example, for a wedding, लेकिन जब आप किसी ऐसी चीज पर खर्च करने के लिए पैसे लेते हैं जो चली जाती है, उदाहरण के लिए शादी के लिए, the slavery of believers to mammon is seen most clearly at weddings. तो आप गुलामी में है। विश्वासियों की पैसे के प्रति गुलामी शादियों में सबसे स्पष्ट रूप में से देखी जा सकती There है। you can see the covetousness and the greed and the honor seeking displayed unashamedly. वहां आप लोभ, लालच और सम्मान की चाह को बेशर्मी से प्रदर्शित होते देख सकते हैं। You consider the dowry system, practiced not only by unbelievers but by believers in almost every denomination. दहेज प्रथा पर विचार करें, जिसका अभ्यास न केवल अविश्वासियों द्वारा किया जाता है, बल्कि लगभग हर संप्रदाय में विश्वासियों द्वारा भी किया जाता है। Those who ask for a dowry before deciding whether this is the girl God wants me to marry are a disgrace to the name of Jesus Christ. जो लोग यह तय करने से पहले कि क्या यह वही लड़की है जिससे परमेश्वर चाहते हैं कि मैं शादी करूं, दहेज मांगते हैं, वे यीशु मसीह के नाम का अपमान करते हैं। And they are certainly not his disciples. वे निश्चित रूप से उनके शिष्य नहीं हैं। How do you find out God's will? Whether this is the girl whom God wants you to marry? By finding out whether her father can give you so much money? आप परमेश्वर की इच्छा का पता कैसे लगा सकते हैं कि क्या यह वही लड़की है जिससे परमेश्वर चाहते हैं कि आप शादी करें? क्या यह पता लगाकर कि उसका पिता आपको कितना पैसा दे सकता है? You're serving mammon. फिर तो आप धन की सेवा कर रहे हो। And it doesn't matter if your pastor or your priest says it's okay. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पासबान या याजक कहता है कि यह ठीक है। God's word does not encourage it. परमेश्वर का वचन इसे प्रोत्साहित नहीं करता। If you were to ask Jesus, what would you say? What would Jesus tell you when you prayed? यदि आप प्रभु यीशु से पूछे तो वो क्या कहेंगे? जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु आपको क्या बताएंगे? Would Jesus tell you, go and ask him for some more dowry? क्या वो आपसे कहेंगे कि जाओ और उससे और कुछ दहेज मांगो? Can you imagine the Lord Jesus saying such a thing? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु ऐसा कुछ कह सकते हैं? Then where are you getting that advice तो from? फिर आपको वो सलाह कहाँ से मिल रही है? You're getting that advice from unconverted people. आपको वो सलाह अपरिवर्तित लोगों से मिल रही है। We must not even expect a dowry when it comes to marriage. No. जब बात शादी की आती है तो हमें कभी भी दहेज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नहीं। Consider also the great waste of money there is at many wedding receptions. इस बात पर भी विचार करें कि अनेक विवाह समारोह में पैसे की कितनी बड़ी बर्बादी होती है। Now there's nothing wrong in having a good wedding reception, if you can afford it. यदि आप इसका खर्च वहन कर सकते हैं तो एक अच्छा विवाह समारोह आयोजित करने में कोई बुराई नहीं है। Jesus himself made extra wine for people at a wedding reception. प्रभु यीशु ने स्वयं एक विवाह समारोह में लोगों के लिए अतिरिक्त दाखरस बनाई थी। But I know many believers who have borrowed money in order to have such a grand reception and they remain in debt for years. लेकिन मैं ऐसे कई विश्वासियों को जानता हूं जिन्होंने इस तरह के भव्य स्वागत के लिए पैसे उधार लिए हैं और फिर वर्षों तक कर्ज में डूबे रहे हैं। Isn't that a stupid way to start a marriage? क्या ये शादी जीवन की शुरुआत करने का मूर्खतापूर्ण तरीका नहीं है? That's evil. It's far better in such a case to have a simple reception. वह बुरा है। ऐसे मामले में सादा स्वागत समारोह करना कहीं बेहतर है। Don't compete with some other family who had a grand reception for their wedding and borrow money to show that you are also able to have such a grand reception. किसी अन्य परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा न करे जिन्होंने अपनी शादी का भव्य स्वागत समारोह किया था और यह दिखाने के लिए कि पैसे उधार ले कि आप भी इतना भव्य स्वागत समारोह करने में सक्षम हैं। You may say, but if I have a simple reception, what will others say? आप कह सकते हैं, अगर मेरा साधारण स्वागत समारोह होगा तो दूसरे क्या कहेंगे? Why not ask yourself, what will God say? फिर अपने आप से यह क्यों नहीं पूछते, परमेश्वर क्या कहेंगे?
Are you more afraid of man's opinion or God's? क्या आप परमेश्वर की राय से ज्यादा मनुष्य की राय से डरते हैं? Do you think what God wants you to start your married life in debt? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप अपना वैवाहिक जीवन कर्ज से शुरू करें? We must never adulterate the message of Christ in the Christian church. हमें मसीह कलीसिया में यीशु मसीह के संदेश में कभी भी मिलावट नहीं करनी चाहिए। This is our standard. यह हमारा मानक होना We चाहिए। will not get into debt as far as possible. जहाँ तक संभव हो हम कर्ज में नहीं डूबेंगे। Now, there may be situations where in an emergency you have to borrow money from somebody, emergency situations which you didn't anticipate. आपातकालीन जैसी स्थितियां आ सकती है, आपको किसी से पैसा उधार लेना पड़ सकता है उन आपातकालीन स्थितियों के लिए जिनका आपने अनुमान नहीं लगाया था। But then you must seek to return that as soon as possible. लेकिन फिर आपको इसे यथाशीघ्र वापस करने का प्रयास करना चाहिए। The word of God is very clear in Romans 13 verse 8. Owe nothing to anyone. रोमियो 13:8 में परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है, किसी भी बात में किसी के ऋणी न बनो। Be content with what you have. Don't be in competition with any other believer. आपके पास जो है उसी में संतुष्ट रहे, किसी अन्य विश्वासी के साथ प्रतिस्पर्धा में न रहे। Once you have learned to be righteous in money matters, you go on to being faithful. एक बार जब आप पैसों के मामले में धर्मी बनना सीख जाते हैं तो आप विश्वास योग्य बनना सीखें। What does it mean to be faithful? Render to God what is God's. विश्वास योग्य होने का क्या मतलब है? जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को सौंप दें। That's the second thing he said. यह दूसरी बात है जो उन्होंने कही। What is God's? परमेश्वर का क्या है? Many people will say 10%. कई लोग कहेंगे 10%। Well, in the Old Testament it was 10%. खैर पुराने नियम में यह 10% था। In the New Testament, Jesus said, if you don't forsake all that you have, you cannot be my disciple. नए नियम में प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका त्याग नहीं करते तो तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते। How much is all? सब कुछ कितना है? All means 100%. सब कुछ का मतलब 100%। When you say give to God what is God's, He wants 100%. जब वो कहते हैं परमेश्वर को वह दो जो परमेश्वर का है तो उनका मतलब 100% होता है। What would you think of a wife who works and tells her husband, I'll give you 10% of my income, the other 90% I'm giving to somebody else? आप उस पत्नी के बारे में क्या सोचेंगे जो काम करती है और अपने पति से कहती है, मैं तुम्हें अपनी आय का 10% दूंगी, बाकी 90% मैं किसी और को दे रही हूँ। Is that a good partnership type of relationship? No. क्या ये एक अच्छी साझेदारी प्रकार का रिश्ता है? नहीं। In the Old Testament, the people were not married to God like we are to Christ. पुराने नियम में लोगों का विवाह परमेश्वर से नहीं हुआ था जैसा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह से हुआ है। They were servants. Servants can give 10% to their master. That's okay. वे सेवक थे, सेवक अपने स्वामी को 10% दे सकते हैं, यह ठीक है। But we're not servants. We are a bride. We are the wife. लेकिन हम सेवक नहीं हैं, हम दुल्हन हैं, हम पत्नी हैं। We've got a joint account, not separate account. हमारा एक संयुक्त खाता है, अलग खाते नहीं है। Masters and servants don't have joint accounts. They have separate accounts. स्वामी एवं सेवक के संयुक्त खाते नहीं होते, उनके अलग खाते होते हैं। But a husband and wife have a joint account. लेकिन पति पत्नी का संयुक्त खाता होता है। Like Jesus said to the Father in John 17 verse 10, जैसे प्रभु यीशु ने यूहन्ना 17:10 में पिता से कहा था, all that is mine is thine and all that is thine is mine. That's a joint account. जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो कुछ तेरा है वो मेरा है, वह एक संयुक्त खाता है। And that's what we say also as Christians. और मसीह होने के नाते हम भी यही कहते हैं, Lord, all that is mine is yours, not 10%. हे प्रभु, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, 10% नहीं। And you know what he says to me? तो क्या आप जानते हैं कि वो मुझसे क्या कहते All हैं? that is mine is yours too. जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा भी है। Isn't that wonderful? That you give your little 10 pies to God and he gives you his millions? क्या यह अद्भुत नहीं है कि आप अपने छोटे से 10 पैसे परमेश्वर को देते हैं और वो आपको अपने लाखों देता है? Isn't it wonderful to have a joint account with God? क्या परमेश्वर के साथ संयुक्त खाता रखना अद्भुत नहीं है? But you can't have a joint account with God if you give 10%. लेकिन यदि आप 10% देते हैं तो आपका परमेश्वर के साथ संयुक्त खाता नहीं हो सकता। You have to give everything. You have to say, Lord, first of all, everything that I have belongs to you in any case.
तुम्हें सब कुछ देना होगा। आपको कहना होगा परमेश्वर सबसे पहले मेरे पास जो कुछ भी है वो किसी भी स्थिति में आपका है। 1 Corinthians 10:26 says, "The earth is the Lord's, and everything that the earth contains is the Lord's." हम 1 कुरिन्थियों 10:26 में पढ़ते हैं, पृथ्वी प्रभु की है और जो कुछ पृथ्वी पर है वो सब प्रभु का है। Have you read that in 1 Corinthians 10:26? क्या आपने वह 1 कुरिन्थियों 10:26 में पढ़ा है? All the houses, सारे घर, all the lands, सारी जमीनें, all the gold, सारा सोना, all the सारी silver, चांदी, everything on earth belongs to God. पृथ्वी पर सब कुछ परमेश्वर का है। Once you recognize that, एक बार जब आप इसे पहचान लेते you हैं don't think you're doing God a great favor when you give everything to Him. तो आप यह नहीं सोचते कि आप परमेश्वर पर कोई बड़ा उपकार कर रहे हैं जब आप उसे सब कुछ दे देते हैं। No, you're giving what belongs to Him. नहीं, तुम वही दे रहे हो जो उसका है। Have you earned much? Has God given you intelligence, ability, qualifications, and capabilities and talents to earn a lot of money, whether in business or in a profession or whatever? क्या आपने बहुत कमाया है? क्या परमेश्वर ने आपको ढेर सारा पैसा कमाने के लिए बुद्धि, क्षमता, योग्यताएं और प्रतिभाएं दी हैं, चाहे व्यवसाय में या किसी पेशे में या कुछ और में? Don't forget Deuteronomy 8 verse 18. व्यवस्था विवरण 8:18 को मत भूलें। It is the Lord who gives you power to make यह money. प्रभु ही है जो तुम्हें धन कमाने की शक्ति देता है। Don't ever forget that. इसे कभी मत भूलना। It is the Lord who gives you power to make money. यह परमेश्वर ही है जो आपको पैसा कमाने की शक्ति देता है। You could have been paralyzed. आप लकवाग्रस्त हो सकते थे, You could have been retarded. आप मंद बुद्धि हो सकते थे, You could have been sick. आप बीमार हो सकते थे You'd have earned nothing. You could have been stupid. और आपने कुछ भी नहीं कमाया होता, आप मूर्ख हो सकते थे। Don't ever forget that all the money you've earned in your life, God helped you to do it. यह कभी न भूले कि आपने अपने जीवन में जो भी पैसा कमाया है उसमें परमेश्वर ने आपकी मदद की है। So your money is not your तो own. आपका पैसा आपका अपना नहीं है। Every way you look at it, it's not yours. हर तरह से आप इसे देखें, यह आपका नहीं है। Now that doesn't mean you have to take all your income and give it for God's work. No. अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी सारी आय लेकर परमेश्वर के काम के लिए दे देनी होगी। नहीं, That's not what I mean. मेरा मतलब यह नहीं है। We give it to Him first of all because it belongs to Him. हम इसे सबसे पहले उसे देते हैं क्योंकि यह उसका है, And secondly because we और love Him. दूसरा इसलिए क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। And so we say, Lord, this is yours. Now tell me what I can spend on myself. और इसलिए हम कहते हैं, प्रभु यह आपका है, अब मुझे बताएं कि अपने ऊपर क्या खर्च कर सकता हूँ। Do you think God doesn't want you to live in a decent house? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अच्छे घर में रहें? You think He wants you to live in a slum? क्या आपको लगता है कि वो चाहते हैं कि आप झुग्गी झोपड़ी में रहें? That's not true. I don't believe it. यह सच नहीं है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। Jesus didn't live in a slum. प्रभु यीशु किसी झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहे। Jesus didn't live in a dirty slum. प्रभु यीशु किसी गंदी झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहे। His house in Nazareth was not a dirty slum. नहीं, नाजरेत में उनका घर कोई गंदी झुग्गी झोपड़ी नहीं था। And God wants you to live with proper food, clothing, and house and education for your children. प्रभु यह भी चाहता है कि आप उचित भोजन, वस्त्र, मकान और अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। He wants you to spend on all these things. There's nothing wrong in all these things. वो चाहते हैं कि आप इन सभी चीजों पर खर्च करें। इन सब बातों में कुछ भी गलत नहीं है। So, to give 100% to God doesn't mean to give it all to God's work and to live on the streets. No. इसलिए प्रभु को 100% देने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ प्रभु के काम के लिए दे देना और सड़कों पर रहना, नहीं। But to recognize that I'm a steward. लेकिन यह पहचानना कि मैं केवल एक खिदमतगार हूँ। I'm only a manager मैं handling somebody else's money. मैं केवल एक प्रबंधक हूँ और किसी और के पैसे संभाल रहा हूँ। And though you earned it, you recognize it's God's, but I want to use it faithfully, recognizing all this is God's. यद्यपि आपने इसे कमाया है, आप पहचानते हैं कि यह परमेश्वर का है, मैं इसे ईमानदारी से उपयोग करना चाहता हूँ, यह पहचान कर कि यह सब परमेश्वर का है। That's the only way to be detached from mammon. धन के प्रेम से अलग होने का यही एकमात्र तरीका है। That's the only way to be delivered from the power of mammon in your life. आपके जीवन में धन की शक्ति से मुक्ति पाने का यही एकमात्र तरीका है। Jesus said in Luke 16 verse 13, if you have not been faithful in the use of unrighteous mammon, Luke 16 verse 10, 11 onwards, that whole section.
प्रभु यीशु ने लूका 16:13 में कहा, उस पूरे अध्याय में, यदि तू अधर्मी धन के उपयोग में विश्वास योग्य न रहे, लूका 16 का 11 से लेकर 13 वचन तक। If you have not been faithful in the use of unrighteous mammon, who will entrust the true riches to you? यदि तू अधर्मी धन के उपयोग में विश्वास योग्य न रहा तो सच्चा धन तुझे कौन सौंपेगा? You know, if you're not faithful, we're not talking about righteousness here. We already finished with righteousness. आप जानते हैं, यदि आप विश्वास योग्य नहीं हैं तो हम यहाँ धार्मिकता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम पहले ही धार्मिकता के साथ समाप्त कर चुके हैं। To be faithful means you say, Lord, I don't want to waste any money. विश्वास योग्य होने का मतलब है, आप कहते हैं, प्रभु मैं कोई पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। I don't want to spend unnecessarily on myself. मैं अपने ऊपर अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहता। I want to be wise in what I spend. I don't want to be luxurious. I want to live simply. मैं जो भी खर्च करता हूँ उस पर बुद्धिमान होना चाहता हूँ। मैं विलासित पूर्ण जीवन नहीं चाहता, मैं सादगी से जीना चाहता हूँ। So that I can have money to give for your work, to serve you, to live for you. ताकि मेरे पास आपके काम के लिए देने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, आपके लिए जीने के लिए पैसे हो। And when we are faithful, you know what God gives us in exchange? The true riches of heaven. जब हम विश्वास योग्य होते हैं तो आप जानते हैं कि बदले में परमेश्वर हमें क्या देते हैं? स्वर्ग का सच्चा धन। Revelation on His Word, likeness to Christ. उनके वचन पर प्रकाशन, मसीह की समानता। If we learn to be simple in our expenditure, being careful not to waste anything that God gives us. यदि हम अपने व्यय में सरल होना सीखते हैं, सावधान रहे कि परमेश्वर हमें जो कुछ भी देते हैं उसे बर्बाद न करें। This is the reason why many people are spiritually poor, because they are not faithful with money, or they have not been righteous with money. यही कारण है कि बहुत से लोग आध्यात्मिक रूप से गरीब है, क्योंकि वे पैसे के मामले में विश्वास योग्य नहीं है या वे पैसे के मामले में धर्मी नहीं है। Will you make a decision right now? आप अभी निर्णय लेंगे? Say, Lord, I not only want to give back to Caesar what is Caesar's. कहो, हे प्रभु, मैं न केवल कैसर को वो लौटाना चाहता हूँ जो कैसर का है, I also want to give you what's yours. In every area, I want to put you first. बल्कि मैं आपको भी वह देना चाहता हूँ जो आपका है। प्रत्येक क्षेत्र में मैं आपको प्रथम स्थान पर रखना चाहता हूँ। I don't want to waste money on myself anymore. I want to be faithful, knowing that I have to give an account to you one day of every rupee that I've earned. मैं अब खुद पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं यह जानते हुए विश्वास योग्य रहना चाहता हूँ कि मुझे एक दिन अपने द्वारा कमाए गए प्रत्येक रुपए का हिसाब आपको देना होगा। Make that covenant with God and see if from this day God doesn't bless you. I believe He will. परमेश्वर के साथ वह वाचा बांधे और देखो आज के बाद परमेश्वर तुम्हें आशीष देता है या नहीं। मुझे विश्वास है कि वह ऐसा करेंगे।